حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے خدا کے رسول، میری 2 پڑوسی ہیں، تو میں ان دونوں میں سے کس پڑوسی کے یہاں ہدیہ بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں میں سے جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہو۔ اے ولیوں کے سالار اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم، اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے۔ اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے ٹانڈا اتر پردیش میں منعقدہ ایک شاندار خود ہند مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں زندہ تلسمات، تمام موسمی بیماریوں کی ایک اثردار دوا۔ تعاون کر رہے ہیں میلا اسکن کریم ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت۔ شری الٹرا ریڈ آکسائڈ، بھارت کا ایک ماتر جنگ روधक سیمنٹ۔ 23 کارگر جڑی بوٹیوں کا کرشمہ، درد ہے تو نورامنٹ ہے نا۔ بریک کے بعد میں ریاض ملک آپ تمام ناظرین کا پھر سے خیر مقدم کرتا ہوں ہماری خاص پیشکش جشن میلاد النبی میں۔ اور ناظرین، ہمارا آج کا یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے دہلی اسٹوڈیو سے۔ بریک سے پہلے ہم جناب تابش مہندی صاحب سے خوبصورت نعت سن رہے تھے۔ آئیے اختر الواسع صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے، حضور نے تو تمام چیزیں ہمیں بتا ہی دی ہیں کہ کرنا کیا ہے زندگی میں۔ تجارت کو لے کے بھی باتیں بیان کر دی ہیں، معاشیت کو لے کے بھی بیان کر دی ہیں۔ اس طرف تھوڑی روشنی آپ ڈال دیجیے۔ معاشیات دیکھیے، ایسا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی، عملی زندگی ہے، اس کا آغاز ایک تجارتی نمائندے کے طور پہ ہوتا ہے۔ بے شک، کیا بات کہی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ایک غلط فہمی کا میں چاہتا ہوں کہ یہاں ازالہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا الفقر فخری، مجھے اپنے فقر پہ فخر ہے۔ لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا فقر جو تھا وہ اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے خود اس کو چنا تھا۔ آپ نے چاہا کہ زندگی کی اس سطح پر زندگی گزاریں جہاں معاشرے کا سب سے پسماندہ ترین اور غریب ترین انسان بھی، جسے کہتے ہیں آج کی زبان میں خط افلاس میں کے نیچے جو آخری آدمی ہو، وہ بھی آپ کی طرف نگاہ ڈالے تو آپ کے اندر اپنے لیے ایک نمونہ پائے۔ ورنہ ایسی بات نہیں ہے، آپ تاجدار مدینہ تھے، آپ اگر ایک اشارہ کر دیتے تو آپ کے قدموں میں کہ ہمیں ہر چیز کے ہمیں آ جاتی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے صحابہ جو تھے ان میں صرف اصحاب صفہ نہیں تھے بلکہ عثمان غنی بھی تھے، اور آپ عبد الرحمن بن عوف بھی تھے جن کے ہاں سونا کلہاڑوں سے کاٹا جاتا تھا۔ تو آپ کا جو معاملہ ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے، بلکہ ایک حدیث اور ہے اس کو اپنے سامنے ہمیں رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا فقر کفر کی طرف لے جاتا ہے، فقر
کفر کی طرف لے جاتا ہے. اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ جوش ملی آبادی نے اس حدیث کے مفہوم کو اپنے 2 مصروں میں ڈالا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ افلاس کھینچتا ہے انسان کو یزدہ کے قریب، اخلاص کھینچتا ہے انسان کو یزدہ کے قریب، اور کم وقت مسلسل رہے تو کافر کر دے. یہ اچھا، یہ اللہ کے رسول سے انہوں نے لیا. دوسری بات جو ہے، آپ غور فرمائیے، اسلام وہ مذہب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو کہ مسلمانوں کو جہاں نماز پڑھنے کا حکم دیتی ہے وہیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیتی ہے. اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. یعنی زکوٰۃ دینے والا سب سے غریب آدمی کون ہوگا؟ سب سے غریب آدمی بھی وہ ہوگا جو 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی یا اس کے مثل جو ہے، اس کے بعد تمام جائز اخراجات کے بعد سال بھر بچت ہو. جی تو اسلام تو آپ سے کہہ رہا ہے اپنے کو متمول بناؤ، صاحب ثروت بناؤ. جی آپ جو ہے دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے حال والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ. بے شک جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے جس میں آپ نے کہا کہ جب تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو اس کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور چنو اور اپنی پیٹھ پر لاد کر بازار میں لا کر بیچو اور اس سے اپنا کام چلاؤ. تو یہ جو طریقہ ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے. اسلام اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ جو ہے وہ غیرت و خودداری کی تعلیم دیتا ہے اور ساتھ میں ہمیں تمول اور ثروت کی طرف لے جاتا ہے. لیکن یہ تمول اور ثروت جو ہے، یہ مالدار جو ہونا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنی ضرورتوں کے مطابق پیسہ کمائیے بھی، استعمال بھی کیجئے، لیکن سماج کے جو دوسرے طبقات ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیے. اسی لیے زکوٰۃ کا پورا ایک ادارہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے. اسلام کے 5 ارکان میں سب سے اہم چیز ہے. اور زکوٰۃ کا معاملہ، اس کی اہمیت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر ایک اونٹ میں اپنی نکیل کے زکوٰۃ میں آنا ہوگا اور کوئی اونٹ دے دے گا لیکن نکیل روک لے گا تو میں اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی تلوار کا استعمال کروں گا. کیوں؟ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی تاریخ میں ایسے وقت آئے ہیں جب مسلم ممالک کے اندر اور مسلم معاشروں کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں رہا. اور آج بھی دنیا میں ایسے مسلم سماج موجود ہیں کہ جہاں یہ مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے کس کو دے اور کس طرح دے. تو یہ جو ہے اصل چیز یہ ہے، اسلام جو ہے وہ چاہتا ہے ایک معاشی مساوات، بالکل، لیکن مسابقت کے اصول کو وہ کا انکار نہیں کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کمپٹیشن بھی ہو لیکن ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے. اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ نے تجارت کی اہمیت پر خاصا زور دیا ہے. اور بھائی اس میں جب اللہ آج کی دنیا میں نہیں، شروع سے آپ دیکھیے دنیا میں انہی کی حکومت رہی ہے. سیاسی طور پہ کوئی بھی چہرہ آپ کو تخت پہ بیٹھا نظر آئے جس کی بازار پہ پکڑ ہو، جس کی بازار پہ پکڑ ہو. اور اسی لیے کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں منڈی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں منڈی ہوتی ہے. کیا بات ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے تعلیم اور تجارت کو کامیابی کے 2 گڑ کے طور پہ ہمیں جس طرح دیا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ اختر الواسع صاحب، جامع بات فرمائی. واقعی آپ نے جو تمام باتیں آج ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں اس سے لوگ استفادہ اٹھانے کی کوشش بھی کریں گے، اور کیوں نہ اٹھائیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں حضور کے ہی بارے میں تھی، ان کی تعلیمات کے بارے میں تھی، ان کے بتائے ہوئے راستے کے بارے میں تھی. اختر الواسع صاحب آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. مجھے ایک اجازت دے دیے کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 یہ مصرے میں بھی پیش کر دوں کہ بن چکی
जब तेरी तस्वीर जमील शगले तस्वीर गरी छोड़ दिया, बन चुकी जब तेरी तस्वीर जमील शगले तस्वीर गरी छोड़ दिया, कह के अकमल तो लकुम फक्र के था, खुद मुसव्विर ने कलम तोड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकई जाते जाते आपने भी जो है अपनी बातों के आगे कलम तोड़ दिया इन 4 लफ्जों को कहकर। ताबिर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जश्न मिलादुन नबी का एपिसोड शहर दिल्ली से। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा और आप अपने जो है फीडबैक से हमें नवाज भी रहे हैं। साथ साथ जाते जाते मैं ताबिश मेहंदी साहब से गुजारिश करूंगा कि आखिर में एक नाज शरीफ पेश फरमाएं और अपने मेजबान, अपने मेहमान रियाज मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर एक नए एपिसोड के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। नात की कुछ मुलाजा फरमाइए। होती है अगर सीने में ईमान की खुशबू, होती है अगर सीने में ईमान की खुशबू, होती है अगर सीने में ईमान की खुशबू, ताहद गुमा जाती है इंसान की खुशबू, ताहद गुमा जाती है इंसान की खुशबू, होती है अगर सीने में ईमान की खुशबू, ताहद गुमा जाती है इंसान की खुशबू, सैयद की न मिर्जा की न अफगान की खुशबू, सैयद की न मिर्जा की न अफगान की खुशबू, है दिल में मेरे साहिबे कुरान की खुशबू, है दिल में मेरे साहिबे कुरान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जाकिर साहब, हेलो। अब क्या है? ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम राजनादा बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन के दर्द को किया नजरअंदाज। सैफई महोत्सव में बॉलीवुड सितारों के रक्स से हुए लुत्फानंदोज। शकील अहमद ने कहा फिरकावाराना फसाद से बीजेपी और ISI को होता है फायदा। बीजेपी का शदीद रद्द-ए-अमल। कश्मीर पर भूषण के बयान पर हंगामा। आपके दफ्तर पर हिंदू रक्षा दल का हमला। हमले के सिलसिले में 12 गिरफ्तार। और आम आदमी पार्टी में मारूफ शख्सियतों की शमूलियत का सिलसिला जारी। क्लासिकल डांसर मलिका साराभाई पार्टी में शामिल। और सबसे पहले रुख करेंगे यूपी का, जहां कड़ाके की सर्दी से सिसक रहे मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन की सिसकियों को नजरअंदाज करके यूपी की समाजवादी पार्टी के कई लीडर अपने वजीर आला अखिलेश यादव के साथ सैफई महोत्सव में
बॉलीवुड सितारों के रक्स व मौसीकी से लुत्फ अंदोज होने पहुंचे। अखिलेश हुकूमत की जिला इंतजामिया ने भी इस मौके पर अपनी हुकूमत की वफादारी का सबूत देते हुए महोत्सव के रास नशियात पर ही पाबंदी लगा दी। जिला इंतजामिया ने भले ही पाबंदी की वजह नज्म व ज़ब्त की बरकरारी बताई हो, लेकिन ये सभी जानते हैं कि गुज़िश्ता सालों में सैफई महोत्सव की रास्त नशियात पर पाबंदी नहीं लगाई गई। सैफई महोत्सव को लेकर कांग्रेस, बीजेपी समेत दीगर कई पार्टियां यूपी हुकूमत पर तनकीद कर चुकी हैं। इसके बावजूद महोत्सव में वज़ीर आला अखिलेश यादव और उनके लीडरों की शिरकत मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन से मुताल्लिक रियासती हुकूमत की संजीदगी पर सवालिया निशान जरूर लगाती है। सैफई महोत्सव के अलावा भी यूपी हुकूमत एक और मामले पर मुख्तलिफ सियासी जमातों और दानिश्वरों की तनकीद का निशाना बनी है। यूपी का एक वफ्द सुबह तड़के सकाफती दौरे पर बैरून मुमालिक के लिए रवाना हो गया। ये वफ्द उत्तर प्रदेश के वजीर आजम खान की क़यादत में रवाना हुआ। इस वफ्द में यूपी के वजीर राजा भैया, ओम प्रकाश सिंह और अंबिका चौधरी शामिल हैं। बताया जाता है कि ये वफ्द 5 ममालिक का दौरा करेगा। यूपी के इस वफ्द के दौरे की मुख्तलिफ सतह पर मुखालफत भी की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन एक तरफ कैंपों में कसमपूसी की हालत में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, वहीं यूपी के वुज़रा सैर सपाटे कर रहे हैं। कांग्रेस तर्जुमान शकील अहमद के एक बयान से तनाजा खड़ा हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में मीडिया से बातचीत करते हुए शकील अहमद ने कहा कि मुल्क में होने वाले फ़िरक़ेवाराना फसाद से बीजेपी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को ही फायदा होता है। शकील अहमद ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट भी किया है। इस देश में कहीं सांप्रदायिक दंगा, विशेषकर हिंदू मुस्लिम दंगा होता है तो दुनिया में 2 तरह के लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, भारत का भाजपाई और पाकिस्तान का ISI। इसलिए कि दोनों को समझने की जरूरत है। देखिए, आइडिया ऑफ इंडिया और आइडिया ऑफ पाकिस्तान दोनों अलग अलग चीजें हैं। आइडिया ऑफ पाकिस्तान है कि हम एक धर्म के लोग ही एक जगह बिना भेदभाव के सुखी संपन्न रह सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। और आइडिया ऑफ इंडिया क्या है कि हम अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जात के लोग एक साथ मेल मोहब्बत से रह सकते हैं और हम देश तरक्की कर सकता है। और भारत ने उसको साबित किया है। हमने 1947 के बाद गोवा को अपने देश में हमारे शामिल हुआ, सिक्किम हमारे देश में शामिल हुआ, और एक धर्म का पाकिस्तान, वो धर्म के नाम पर ही उर्दू बोलने वाले और बंगला बोलने वाले आपस में नाइतफाकी करके बांग्लादेश और पाकिस्तान के नाम से 2 देश बट गया। तो जब भी इस तरह की घटनाएं भारत में होती हैं, जो रेडिकल एलिमेंट्स है पाकिस्तान में, वो लोगों को दिखलाता है कि हम लोगों ने जो फैसला लिया अलग होने का वो सही था। और दूसरे एक ये कि ये जो 40-42 मुस्लिम इस्लामिक देश हैं, मुस्लिम देश, इनके यहां ISI और पाकिस्तान के लोग, जो रिपोर्ट्स है अनकन्फर्म, कि कहते हैं कि हम वहां मदद कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लोगों की, हमको आप कुछ फंड से मदद कीजिए। तो ISI को फंडिंग होती है, और जब पोलराइजेशन होता है सोसाइटी में तो भाजपा को वोट का फायदा नजर आता है। तो जब भी मैंने ट्वीट किया है कि वेन एवर देयर इज कॉमनल ट्रबल इन दिस कंट्री, 2 टाइप ऑफ पीपुल रिजॉयस। शकील अहमद के बयान पर बीजेपी चिरागपा हो गई है। पार्टी तर्जुमान प्रकाश जावड़ेकर ने उनके बयान को मुस्तरद करते हुए इसे मुल्क को तोड़ने वाले बयान से ताबीर किया, जबकि JDU ने बयान की तायीद करते हुए कांग्रेस को भी आईना दिखाया। इस समय में दंगा कराने वाली कांग्रेस और ISI खुश होते हैं, ये वास्तविकता है। बिकॉज क्योंकि दंगा का इतिहास अगर देखेंगे देश का, आजादी के बाद जितने हजारों दंगे हुए
उसमें से 90% दंगे कांग्रेस के राज में हुए हैं। तो दंगे कांग्रेस कराती है, उसको रोकती नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय का वो कल्याण नहीं करती है और केवल एक हवा दिखाती है, बीजेपी का डर पैदा करती है। यही उनकी राजनीति है। अब ये राजनीति परास्त हो जाएगी। ऐसे आरोपों को कोई ध्यान नहीं देगा। ये लोग जानते हैं कि सांप्रदायिक दंगों के पीछे कांग्रेस होती है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स उनकी होती है और मुसलमानों के दिल में हवा तैयार करना बीजेपी के खिलाफ, ये उनका काम है। अब ये रणनीति फेल हो जाएगी। ये बात सही है कि जो इस तरह के कम्युनल क्लैशेज होते हैं तो उसमें से जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं और जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैं, जिनकी आइडियोलॉजी में ये फंडामेंटलिज्म है और कम्युनलिज्म है, उनकी ही बात बनती है, उनकी ही राजनीति चमकती है। लेकिन सवाल यह है कि शकील साहब की पार्टी सेंटर में राज कर रही है। इतने दिनों तक 40 साल तक एक छत्र राज रहा इस देश में, तो वो उसके अंदर भी दमखम, इस चाहे संघ परिवार हो चाहे आईएसआई हो, उससे लड़ने का कोई दमखम इनके अंदर नहीं दिखता। गाजियाबाद के कौशाम्बी में वाक़ आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हिंदू रक्षा दल के कारकुनों ने हमला कर दिया। जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से आम आदमी पार्टी लीडर प्रशांत भूषण के बयान पर भड़के हिंदू रक्षा दल के दर्जनों कारकुनों ने आप के दफ्तर पर हमला करके तोड़फोड़ मचाई। प्रशांत भूषण ने इस हमले के लिए बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों को जिम्मेदार करार दिया। हिंदू रक्षा दल के तकरीबन 40 मुश्तइल कारकुनों के हमले में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के साजो सामान को काफी नुकसान पहुंचा। दफ्तर में मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। कारकुनों ने आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण के कश्मीर में रेफरेंडम की मांग की हिमायत में दिए गए बयान के खिलाफ तोड़फोड़ मचाई। हिंदू रक्षा दल के कन्वीनर पिंकी चौधरी ने हमले को हक बजाने करार देते हुए कहा कि प्रशांत भूषण के बयान से एक खास फिरके को सदमा पहुंचा है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हमले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सवाल किया कि क्या वो बयान की पादाश में प्रशांत भूषण को कत्ल कर देना चाहते हैं। मान लीजिए प्रशांत जी ने कुछ कहा तो वो लोग क्या चाहते हैं? प्रशांत जी को मारना चाहते हैं, उनका कत्ल करना है। अगर मुझे मारने से या प्रशांत जी को मारने से या हमारे ऑफिस में तोड़फोड़ करने से अगर कश्मीर का समाधान होता हो तो वो मुझे जगह बता दें, समय बता दें, स्थान बता दें, मैं आ जाऊंगा मुझे मारने। आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण का कहना है कि इस वाक़े से बीजेपी और संघ परिवार के हकीकी किरदार का पता चलता है। आम आदमी पार्टी का जो उर्फान हुआ है देश में, उससे इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है कि वो लोग अब हर तरह की हरकत पर उतर आए हैं कि तोड़ फोड़ करेंगे, मार पिटाई करेंगे। ये सब उनका पूरा चरित्र दिखाता है कि किस तरह के लोग हैं ये। उधर बीजेपी ने इस हमले से अपना पल्ला छाड़ लिया है। पार्टी तर्जुमान मीनाक्षी लेखी ने हमले की मजम्मत की है, लेकिन इसके साथ ही प्रशांत भूषण के बयान पर भी शदीद एतराज जताया। हम उसका खंडन करते हैं क्योंकि हम हिंसा के पक्षधर नहीं हैं और साथ में हम खंडन करते हैं श्री प्रशांत भूषण जी के ऐसे बयानों का जो कि पूरे देश में एक इस तरीके का वातावरण पैदा कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं अपने भाषणों द्वारा। हमले के बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि इस तरह के नाखुशगवार वाक़े को दोहराया न जा सके। पुलिस का कहना है कि पार्टी दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी के कोई इंतजामात नहीं थे। पुलिस का ये भी कहना है कि वो सिक्योरिटी के मामले पर फिर से अरविंद केजरीवाल से गुफ्तगू करेंगे। वाज़ेह है कि अरविंद केजरीवाल अपने घर और पार्टी दफ्तर के लिए सिक्योरिटी देने से इनकार कर चुके हैं। केजरीवाल का घर पार्टी ऑफिस से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हमला करने के सिलसिले में हिंदू रक्षा दल के कौमी कन्वीनर भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी और उसके 12 साथियों को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमले की क़यादत पिंकी ही कर रहा था। आपके दफ्तर पर नस्ब सीसीटीवी के फुटेज की मदद से बकिया हमलावरों की भी पहचान की जा रही है। पिंकी और उसके साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ हिंदू रक्षा दल के अरकान ने एहतजाज किया।
ये पिंकी चौधरी उर्फ भूपेंद्र चौधरी के साथ उनका समर्थक 12 लोग अभी हम लोग गिरफ्तार किया है। ये तो हिंदू रक्षा दल का वो समर्थक है सब लोग। यहाँ पे इन लोग अभी आम आदमी पार्टी कार्यालय में जाके वहाँ पे उनका पार्टी कार्यालय में शीशा वगैरह का तोड़फोड़ किया, उसी के एफआईआर भी दर्ज हुआ, उसका आधार पर लोग मारूफ क्लासिकल डांसर और समाजी कारकुन मल्लिका साराभाई आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं। मल्लिका साराभाई का शुमार गुजरात के वज़ीर-ए-आला नरेंद्र मोदी के कट्टर नाक़दीन में किया जाता है। 2009 लोकसभा इंतखाबात में साराभाई ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी के सीनियर लीडर एल.के. अडवाणी के खिलाफ गुजरात के गांधीनगर से अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई थी। 1984 में कांग्रेस की तरफ से खुद आंजहानी वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी ने मल्लिका साराभाई को पार्टी का टिकट ऑफर किया था। 7 साल मल्लिका साराभाई इंडियाज स्पेस साइंस के बानी डॉक्टर विक्रम साराभाई और मृणालिनी साराभाई की बेटी हैं। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को करप्शन से पाक करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये हेल्पलाइन नंबर दिल्ली के बाशिंदों के लिए जारी किया गया ताकि इसके जरिए रिश्वतखोर ऑफिसर्स को पकड़ा जा सके। अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे कहीं पे, आप तुरंत उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, स्टिंग कर लो उसका। रिकॉर्डिंग करके आप हमारे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में लाके सुना दो और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट आपके साथ मिलकर ट्रैप ले करेगा और उस ऑफिसर को गिरफ्तार कर लेगा। एक फोन नंबर है, ये फोन नंबर हेल्पलाइन नंबर है, कंप्लेंट नंबर नहीं है। ये पहले तो ये नंबर नोट कर लीजिए 011-273-57169। ये सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक काम करेगा नंबर। ये काम ऐसे करेगा कि कोई भी जब फोन करेगा तो उसका नाम, तो ये सीधे किसी कॉल सेंटर पे जाएगा, उसका नाम, उसका फोन नंबर और वो क्या कह रहा है नागरिक की रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। इसके बाद एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से एक एडवाइजर का फोन वापस जाएगा नागरिक को और उस नागरिक को एक्सप्लेन करेंगे कि आप स्टिंग कैसे करना है आपको। जो स्टिंग को करेगा वो भी सपोर्टिव एविडेंस काम आएगा बाद में कोर्ट के अंदर। तो उसको वो समझाएंगे कि जब आप उससे बात करो तो आप उससे बात करना क्या काम के लिए वो पैसे मांग रहा है, कहां पे पैसे डिलीवर करने हैं, ये सारी चीजों की रिकॉर्डिंग वो करें। ये सारी चीजें वो एडवाइजर्स जो हैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के, वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। जब उसका स्टिंग ऑपरेशन कर ले नागरिक, जब स्टिंग ऑपरेशन कर ले तो वो वापस वो एडवाइजर उसको अपना पर्सनल नंबर देगा, उस पर फोन करेगा। जब वो तैयार हो जाएगा स्टिंग के साथ तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से फिर फोन आएगा कि आप इतने बजे आ जाइए और आपके साथ मिलके हम ट्रैप, फिर वो जो नोट के ऊपर पाउडर वगैरह लगाते हैं वो सारा वो लोग तैयार करेंगे। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। सीबीआई ने कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट घोटाले के मामले में मजीद 2 एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने एफआईआर 2 कंपनियों के खिलाफ दर्ज की है जिन्हें एनडीए के दौरे हुकूमत में